Hello everyone. In this video, we'll discuss about how to design a full subtractor circuit. Previous lecture में हमने देखा था how to design half subtractor circuit. Now let us start with our definition about full subtractor circuit. What is it? A full subtractor circuit is a combinational circuit which subtracts three inputs. We'll take the three inputs as A, B, and C, and it produces two results, namely we'll again get either difference or we'll get borrow. So accepting three inputs and subtracting them to get two outputs, namely difference and borrow, is called as a full subtractor circuit. Now how we can perform subtraction? So let us consider this example. First we have to subtract A with B, and whatever the result is there we have to subtract with C. So remember the process: A minus B, whatever the result is there we have to subtract with C. So this is going to be our simple concept about full subtractor. Now let us come across truth table. Now it has three inputs A, B, C, and two outputs, namely difference and borrow, we have written. Now if you have three inputs, I can draw a three variable truth table starting with 0, then we should get 1, then 2, then we have 3, 4, this is 5, this is 6, and finally we have 7. So we'll get a combination of total 8 terms starting with 0 to triple. Let us subtract them. So first term again 0 0 0, definitely difference and borrow will be 0 0. Now we will be subtracting this term, 0 minus 0, difference will be 0, definitely. Now 0 minus 1, 0 minus 1, as you know there will be difference 1 and borrow 1. Always remember, when we subtract a larger number from smaller number, we'll get two outputs, difference and borrow, both 1 1 हो जाएगा. अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, 0 1 0 सेकंड कॉम्बिनेशन में. फर्स्ट 0 को 1 से सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 1, डिफरेंस आ जाएगा 1 का, बोरो विल बी जनरेटेड एज 1. हो गया. अब इस 1 को 0 से सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0, डिफरेंस विल बी 1, बोरो विल बी 0. सो वी गेट बोथ द कॉम्बिनेशन 1 1. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 1 के लिए. अब देखिए सबसे पहले इसे सबट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 1, डिफरेंस 1, डायरेक्टली आई एम राइटिंग बोरो एज 1. ठीक है. अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1, डिफरेंस विल बी 0. नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन 1 0 0, 1 माइनस 0, डिफरेंस विल बी 1, 1 माइनस 0, डिफरेंस 1, बोरो विल बी 0. नेक्स्ट 1 0 1 के बीच में 1 माइनस 0, difference 1, 1 minus 1, difference 0, there will not be any borrow, so I have written this as 0. Next 1 1 0 के बीच में 1 minus 1, difference will be 0. Now 0 minus 0, difference 0, there will not be any borrow. क्या लास्ट कॉम्बिनेशन इसके लिए जाते हैं, 1 minus 1, 1 minus 1, difference will be 0, borrow will be 0. नेक्स्ट 0 minus 1, 0 minus 1 किया तो डिफरेंस 1 है और बोरो भी 1 आ जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव रिटन द ट्रूथ टेबल फॉर फुल सबट्रैक्टर सर्किट. अब इस बिहाफ पे हम जाएंगे लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए. सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंस के लिए, डिफरेंस इज इक्वल टू समेशन एम. देखिए डिफरेंस 1 है कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, 1 2 4 और 7 के लिए. सो यू कैन राइट 1 2 4 7 के लिए डिफरेंस 1 है. Now we'll go for borrow. Borrow is equal to summation. अब देख सकते हैं बोरो कब कब 1 है, 1 2 3 7, 1 2 3 एंड 7. सो इन सभी माइंड टर्म्स के लिए बोरो 1 आ जाएगा और इनके लिए डिफरेंस आ जाएगा 1. हो गया. अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप के लिए, इस टू ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन फॉर अदर डिफरेंस एज वेल एज फॉर बोरो. So let us place 1 across the terms which are present. ये 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. सो डिफरेंस इज 1 फॉर द माइंड टर्म्स एज 1 2 4 7, यानी कि हम 1 2 4 7 के अक्रॉस 1 प्लेस करेंगे. लेट अस स्टार्ट 1 2 4 एंड 7. फाइन. अब देखते हैं कोई पेयर फॉर्म हो सकता है का. स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 के एडजेसेंट 0 3 5 है, इन तीनों में भी कुछ भी नहीं है, सो ये आ जाएगा आइसोलेटेड. दैट मीन्स वी कांट फॉर्म एनी
पेयर। 2 के अक्रॉस भी देखिए 2 के एडजेसेंट 3 6 है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये आइसोलेटेड हो जाएगा। 4 भी आइसोलेटेड है, 7 भी आइसोलेटेड, दैट मीन्स वी कांट टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर के मैप। अब हम एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट आई विल राइटिंग फॉर 1 के लिए देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बार और यहाँ से आ जाएगा बी बार सी, प्लस 2 के लिए भी देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बार और यहाँ से आ जाएगा बी इंटू सी बार, प्लस 4 के लिए देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बी बार सी बार, प्लस 7 के लिए आ जाएगा ए बी इंटू सी। क्या ये चारों प्रोडक्ट हमने लिख लिए। अब देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है क्या। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 2 प्रोडक्ट टर्म्स। वी कैन टेक ए बार एज कॉमन, सो वी लेफ्ट विथ बी बार सी प्लस बी सी बार, प्लस यहाँ से मैं लेता हूँ ए कॉमन, सो वी लेफ्ट विथ बी बार सी बार प्लस बी इंटू सी। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कुछ एक्सऑर गेट की तरफ है, बी बार सी प्लस बी इंटू एक्स बार, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट बी एक्सऑर सी प्लस ए इंटू दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्स नॉर गेट एज बी एक्स नॉर विथ सी। Okay, this all parts we already seen, simply I am calling the same terms over here. फाइन, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए देखिए इस एक्सऑर गेट को मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, उसके 2 इनपुट्स है, एक बी है एक है सी। अगर है एक्स तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एक्स बार। द रीज़न इज एक्सऑर गेट इज कॉम्प्लीमेंट विथ एक्स नॉर, यानी कि ये दोनों एक में को कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए ये अगर एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स बार, सब्सटीट्यूट करेंगे विल गेट ए बार एक्स प्लस ए इंटू एक्स बार। अगेन वी आर गेटिंग एक्स और गेट, देख सकते हैं आप ए बार एक्स प्लस ए इंटू एक्स बार आ गया, तो ये हो जाएगा ए एक्स और विथ एक्स। अब एक्स को रिटर्न करते हैं, एक्स दिया है बी एक्स और सी, तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, यानी डिफरेंस का इक्वेशन आ गया अगेन ए एक्स और बी एक्स और सी। ये सिमिलर है फुल एडर का जो सम का इक्वेशन आया था, ए एक्स और बी एक्स और सी के सिमिलर है। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, बोरो का। सो लेट अस स्टार्ट विथ 3 वेरिएबल के मैप फॉर बोरो। मैंने ये मैप कर लिया है सो दैट वी कैन सेव सम अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखिए बोरो कब कब 1 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल माइन टर्म 1 2 3 7 के अक्रॉस हम 1 रखेंगे। सो विल प्लेस 1 2 3 और 7 के अक्रॉस 1 रख दिया। अब चेक करते हैं कुछ पेयर वगैरह फॉर्म होता है क्या। देखिए सेल नंबर 1 और 3 एडजेसेंट है, यानी मैं 1 और 3 का एक पेयर ले सकता हूँ। देयर इज वन पेयर बिटवीन 1 एंड 3। नेक्स्ट देयर विल बी अनदर पेयर बिटवीन 2 3, क्योंकि दोनों में भी 1 1 है, और लास्ट 7 है, तो 7 और 3 का भी एक पेयर हो सकता है। सो लेट अस फॉर्म ए पेयर बिटवीन 7 एंड 3। तो हमारे पास 3 पेयर आ चुके हैं, 1 3 का, 2 3 का और 3 और 7 का। Let us go for borrow then. Borrow is equal to, सबसे पहले तो 1 और 3 सेल के लिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और इसका वेरिएबल आ जाएगा ए बार। अब ऊपर की तरफ चलते, 1 और 3 के बीच में अगर हम देखते हैं तो ये सी कॉमन निकल सकता है। सो विल टेक सी कॉमन, विल गेट ए बार सी, प्लस 2 3 के लिए भी देखिए ए बार यहाँ से आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक बी एज कॉमन, सो विल गेट ए बार बी, प्लस लास्टली 3 और 7 के लिए मैं अगर हॉरिजॉन्टली देखता हूँ तो 3 के लिए वैल्यू है ए बार और 7 के लिए है ए, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से मिला 1। अब बी सी की तरफ चलते, 3 7 देखिए वर्टिकल है और वर्टिकली बी और सी का टर्म क्या देखिए बी इंटू सी है, तो ये आ जाएगा बी इंटू सी। सो फाइनली आई कैन राइट बोरो इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार इंटू सी। सो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर बोरो, हो गया। सो वी गॉट बोथ द इक्वेशन। अब हम जाते हैं लॉजिक डायग्राम की तरफ, दैट विल बी आवर लास्ट स्टेप। सो तब तक मैंने ये डिफरेंस और बोरो को इक्वेशन कैरी किया है। लेट अस ड्रॉ देम। देखिए डिफरेंस के लिए वी नीड 2 एक्सऑर गेट। सो सबसे पहले तो ये एक्सऑर गेट का बात करेंगे। लेट अस टेक 1 एक्सऑर गेट, विल ड्रॉ दिस विल बी आवर एक्सऑर गेट। विल असाइन 2 इनपुट्स ए और बी को कनेक्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इनपुट एज ए और ये कनेक्ट करते हैं सेकंड इनपुट बी, तो ये आ जाएगा आउटपुट
ए XOR बी का। आ गया। अब क्या करना है, और एक XOR गेट लेना है और उसको इनपुट प्रोवाइड करना है सी से। फाइन। सो विल टेक, ये आउटपुट को इनपुट कनेक्ट करते हैं एंड विल टेक थर्ड इनपुट एज सी, और इन दोनों के अक्रॉस भी हम कनेक्ट करेंगे वन XOR गेट को। ये कुछ इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट डिफरेंस इज इक्वल टू ए XOR विथ बी XOR विथ सी। फाइन। देखिए यहाँ से मैंने ए XOR बी एक इनपुट लिया था, दूसरा इनपुट लिया सी, और दोनों के अक्रॉस XOR गेट रखा तो मिल गया ए XOR बी XOR सी। ये हो गया। अब हम जाते हैं दिस टर्म के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट हम देखिए ए बार बी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ए को विल टेक ए फ्रॉम हियर, इसके अक्रॉस प्लेस करेंगे वो नॉट गेट को, तो ये हो जाएगा ए बार। हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट टर्म बी लगने वाला है, दूसरा टर्म बी लेते हैं और इन दोनों के अक्रॉस हम प्लेस करेंगे वन एंड गेट को, तो ये हो जाएगा हमारा ए बार इंटू बी। आ गया। नेक्स्ट विल टेक ए बार सी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से हमें ए बार तो मिल चुका है, सो विल टेक, या फिर इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे विथ नॉट गेट ए बार, एंड फ्रॉम हियर विल टेक सी एंड विल प्लेस अनदर एंड गेट ओवर हियर, तो ये हो जाएगा ए बार सी। नाउ वी लेफ्ट विथ बी सी, तो लेते हैं। देखिए बी ऑलरेडी यहाँ से कनेक्ट था, आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन एंड फ्रॉम हियर विल कनेक्ट सी एंड विल प्लेस अनदर एंड गेट, सो विल गेट बी इंटू सी। अब तीनों का एडिशन करना है, तो तीनों के एडिशन के लिए एक तो हम 3 इनपुट और गेट यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 इनपुट और गेट यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर 2 इनपुट और गेट। सबसे पहले ए बार बी और बी सी को ऐड करेंगे, ए बार बी और ए बार सी को ऐड करेंगे, और सेकेंडली यहाँ से जो बी सी आ चुका है उसको भी हम कैरी करेंगे, और इन दोनों के अक्रॉस प्लेस करेंगे एक और गेट को, तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिक डायग्राम फॉर borrow, and this is for difference. So in this way you can design a full subtractor circuit. I hope you understood this particular point. Thank you so much.